ये काली काली आंखें हैज अ कैरेक्टर हु इज अ डांस टीचर. तो मुझे इस शो में 4 सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करने थे. And because she's a dance teacher, I had more scope of showing dance for the first time on OTT platform. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बज इंडिया। और आज हमारे साथ है अंकिता, जिन्होंने अलग अलग सॉन्ग्स पर अपनी कोरियोग्राफी बताई है, अलग अलग एक्टर्स को अपने इशारों पे नचाया है। हाय अंकिता, वेलकम टू ई बज। Hi, thank you so much for having me on the show. लुकिंग वेरी प्रिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you. So are you. Vibe and थैंक यू, your energy. It's so sweet. थैंक यू। अंकिता, मैं शुरुआत आपकी जर्नी से करना चाहूंगी। किस तरह से जर्नी रही है इंडस्ट्री में इतने सालों से? मतलब क्या कुछ हुआ है, कितना उतार चढ़ाव आया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? Wow, okay. तो it's been quite a long journey. कुछ 15 साल से ऊपर, almost 20 years you can say I have been in the industry. So my journey has actually transformed from a dancer to a performer to a choreographer to a director of choreography. तो ये सब एक ट्रांजिशन में होता है, ये फेजेस में होता है. कोई भी मतलब वन डे में डांसर डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी नहीं बन जाता, या एक कोरियोग्राफर नहीं का खिताब नहीं मिल जाता. It has taken me a lot of time and it only comes with experience. So first when I was talking to somebody before you and I was telling them, जब हमने बचपन में हम सीखते हैं खाना, खुद के हाथ से खाना, ब्रश करना, चलना, वही टाइम पे मैंने डांस करना शुरू किया. कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी इवेंट होता था, मैं चली जाती थी स्टेज पे, मुझे कोई डर नहीं था. तो मेरे मॉम डैड को पहले से ही पता था ये लड़की तो डांसर बनेगी, या तो डांस रिलेटेड, इसको डांस पसंद है, शी इज गोइंग टू डू समथिंग विद डांस. And that's how I think my journey started. It was just gifted by universe to me. I was always dancing. I went to boogie woogie तब के टाइम पे, जब हमारे पास कोई रियलिटी शोज नहीं हुआ करता था, जब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था कि हम अपने आप को शोकेस कर सके या कुछ सीख सके. Besides the dance classes, हमारे पास था boogie woogie. So 3rd या 4th episode था boogie woogie का, and I went for it and I won it. So then it was like every step was getting me closer to what I love doing. And then I trained myself with lots of aced trainers and choreographers. I went to Terence Lewis's dance academy. उनके academy में मैं 6-7 साल रही. वहां से जैसे मैं निकली, I got a call from Jhalak Dikhla Ja saying that would you audition for Jhalak Dikhla Ja? And I was like, why not? Why wouldn't I? I just went for it. And पता नहीं था, मैंने तो ऐसी ऑडिशन दे दिया, जो होगा देखा जाएगा. And I got selected. I was so happy. And I did 2 years of Jhalak Dikhla Ja. First year I did with Talat Aziz and second was with Mantra Mugh. फिर मैंने नजबली किया. नजबली में मेरे पार्टनर थे राजू श्रीवास्तव and his wife. So my journey in Najbali was only laughters and laughters and laughters. From there मैंने काफी सारे टेलीविजन वर्क किए ताकि मैं सीख सकूं कैमरा टेक्निक्स, ताकि मैं सीख सकूं lighting and how does it work. To become a dance director, you have to know a lot of techniques. A choreographer cannot just become a dance director. To get the kitab of dance director, आपको पता होना चाहिए कौन से lenses लग रहे हैं, कहाँ से lighting आ रही है, कहाँ से angle लेना चाहिए, कहाँ से movement होते टाइम कैमरा मूव होनी चाहिए. So all these things I learned in those years when I was working for television and lot of music videos and ad films. And I was nominated for Best Choreographer for Indian Telly Awards. And मैंने expect नहीं किया था. I won it at a very young age. So again, that was an achievement. And I was like, wow, I mean, this is what I'm meant to do. And I'm happy that I'm doing that. After that, I won an award for Best Indie Music of the Year for Jaan Meri. That was a song that I choreographed and danced. I was featuring in the song. तो उसको भी हम मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में हमें अवार्ड मिला. And then that's it. The journey is never ending. हम बस करते जाते हैं अच्छे काम, and things just happen and universe keeps rewarding you with your good work. So yeah, that's how it is.
नो डाउट आपकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन या उतार चढ़ाव भरी कह सकते हैं हम, मतलब तभी के मतलब आज से एक 6-7 साल पहले, 10 साल पहले हम कह सकते हैं कि इतना डांस से रिलेटेड कुछ ज्यादा था नहीं। मतलब जैसे अभी बहुत सारे टेलीविजन शोज है जिसमें हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं, और उस पिछले 10-12 साल में ऐसा कुछ एक्सेस था नहीं, और वो काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी से अभी वाला जो डांसर्स है, जिस तरह उन्हें सारी चीजें इजीली मिल रही बिकॉज ऑफ अलग अलग टेलीविजन शोज, और पहले का जो जमाना था उस तरह हमें हर एक चीज बहुत मुश्किल से मिलती थी। क्या कुछ कहना चाहोगे इस दो अलग अलग चीजों को लेकर, इस कंपैरिजन को लेकर? Actually, it's a very lovely question that you have asked me. Fortunately ना, मेरा जो जनरेशन है, हमने सब देखा है. like I sit and I talk to my friends. I'll just go beyond dancing. हमने वो फेज भी देखा है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, लैपटॉप नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, और हमने ये फेज भी देखा है. हमने वो फेज भी देखा है जहाँ पे हमारे पास उबर, ओला, मेट्रो, मतलब हमने दोनों फेजेस ऑफ लाइफ देखे हैं. ये जो हमने ये भी देख लिया, क्या कहते हैं अपना वंस इन अ लाइफ टाइम पैंडेमिक, जो 100 साल में एक बार होता है, हमने वो भी देख लिया. हमने 2000 जो मिलेनियम होता है वो भी. सो माय जनरेशन इज सच जो आई थिंक सब कुछ देखा है. सो वी आर द पीपल हु आर अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ बोथ. तो आप हमें कहते हैं ना, पुराने टाइम पे जिस तरीके से वर्क टेक्निक्स होता था उस तरीके से वर्क करने का हो तो हम वो भी कर देते. नए तरीके से इंटरनेट के जमाने में पोस्ट करते रहो, ये करते रहो, उस तरीके से भी कर लेते. सो बेसिकली वी आर अ ब्लेंड ऑफ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ बोथ. बट लाइक आई सेड, like I was saying, if I have to compare, I love so internet and आज के times and what you call these big opportunities is very good, but बहुत जल्दी success दिख जाता है बहुत जनों को. तो आप एक रियलिटी शो में जाते हो, आप पॉपुलर हो जाते हो, दैट हमारी जो ये जर्नी होती है ऑफ फेम, जो आसानी से जो वो छोटी बन गई. तो हमारी जर्नी जो है ना, जब हमें सक्सेस मिलना था, जब हमें क्या कहते हैं वो ट्रांजिशन, काफी इयर्स लगे हैं हमें, 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस, तब जाके थोड़ा फेम मिला है, तब जाके हमें वो रिकग्निशन. और आजकल इट्स वेरी सिंपल, आपने 10 रील बना लिए और आपको फॉलोअर्स मिल जाते. सो आई जस्ट बिलीव दैट वो जर्नी छोटी हो गई. सो उसमें क्या होता है ना, आपको इजीली फेम तो मिल गया है, पर आपने उसको पाने के लिए जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलने थे, आपको पाने थे, वो कम हो गया है. तो उस वजह से आपने कभी एंजॉय ही नहीं किया है, you know. So I just feel that it's a good thing, and it's also it's a boon, and it's a it's a good thing also, it's a bad thing also. इट्स इम्पोर्टेंट कि अपॉर्चुनिटीज मिले लोगों को, पर एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि वही लोगों को समझे कि आपका जो ट्रांजिशन है टू फ्रॉम वन कैरेक्टर टू द अदर, जैसे एक डांसर से आपको अगर परफॉर्मर बनना है, या तो उस चीज को एक्सपीरियंस देना होता है, टाइम देना होता है. जस्ट बिकॉज आप फेम हो गए हो जरूरी नहीं है कि आपको आ गया है. तो इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न एंड गो अहेड. अदरवाइज आई बिलीव कि जो हर्डल्स आते हैं लोगों के लाइफ में, टेक इट एज अ पॉजिटिव, आई टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग. एवरी टाइम आई हैड टू फॉल, या किसी ने मेरे पे चिल्लाया, या कोई सेट पे किस्से हुए, या कुछ इश्यूज हुए, आई जस्ट टुक इट पॉजिटिवली एंड टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स हाउ यू गो अहेड इन लाइफ. बिल्कुल सही कहा आपने. जैसे आपने बताया कि जर्नी जो है वो अगर धीरे धीरे करते वो आगे जब बढ़ती है तो हर एक मूवमेंट को जीना सिखा देती है हमें, और हमें असलियत में अहमियत पता चल जाती है कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये जर्नी. अभी आपकी
जर्नी भी बहुत ज्यादा कमाल की है, इसलिए हमें बाजीराव मस्तानी, पद्मावती जैसे सभी मूवीज में आपका डांस देखने मिला, आपने जो कोरियोग्राफ किया है वो डांस देखने मिला है। तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए, क्योंकि रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, बाकी सारे एक्टर्स किस तरह से मैनेज हुआ था, क्या कुछ कहना चाहो, कुछ मेमोरीज जो शेयर करना चाहो? So when I was working with SLB, तो मैंने दोनों मूवीज के, बाजीराव मस्तानी एंड पद्मावती। बाजीराव मस्तानी में जो हमारा गाना था वो था अब तोहे जाने ना दूंगी, जो रिलीज ही नहीं हुआ बिकॉज वो काफी लंबा हो गया था फॉर द शो। इट गॉट वेरी लॉन्ग फॉर द मूवी, तो उस वजह से उन्हें गाना काटना पड़ा। पर वो गाना हमने सेट किया था और कोरियोग्राफ किया था और एग्जीक्यूट किया था। 5 days ऑफ शूट एंड 3-4 days ऑफ रिहर्सल। गाना काफी सिंपल था। प्रियंका मैम को सिखाना था एंड रणवीर सिंह आते हैं एंड दैट्स व्हेन शी सेज दैट शी इज प्रेग्नेंट। सो दैट वाज द मोमेंट। वो पानी में होता है तो पूरा गाना वाज इन द पानी, मतलब पानी बह रहा है। वी हैड टू शो देयर इज अ वाटरफॉल, so the grandeur of the sets and all, तो मतलब उस बारे में क्या ही कहे। It's beautiful. So basically we had to shoot that whole thing in water. So हम 5 दिन पानी में थे, our legs were in water. Anyway, पर वो गाना उनको काटना पड़ा, so it was very sad. And पद्मावती में हमने किया था बिनते दिल, where Jim Saab and Ranveer had to work, and we had to work with them. And Ranveer Singh is such a beautiful actor. He was always in his character, grungy, and that उनका जो character था grungy and rough, तो हमसे भी वो कभी कभार बात करते थे तो वो उस तरीके से करते थे, तो हमें लगता था is he angry or something, but actually he wasn't angry. He was playing his character because he has to be in his character. Correct. So the experiences were beautiful. Now when it comes to Sanjay sir, okay, I don't think anybody in this industry who's a technician, who's an artist, who's उनको नहीं करना काम संजय सर के साथ। To work with Sanjay Leela Bhansali is a very big thing for every artist, for every technician in the industry. So जैसे मुझे पता चला that I am going to be working with him, I was very excited, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कितना कुछ सीखूंगी उनसे। उनसे सीखना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले जब हम सेट पे गए तो मैं एक्साइटेड भी थी बहुत ज्यादा और बहुत बुरी तरह नर्वस भी थी, क्योंकि सर ना ज्यादा बात नहीं करते और सर ना थोड़ा इतना डीप वो अपने वर्क में है, उनके काम में वो इतना डेप्थ में रहते हैं ना कि वो real में भी वो he's just his work. So even when he's talking to you, it's in that zone. He is a perfectionist and उनके standards तक नहीं reach कर पाते अगर कोई, तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनका गुस्सा जायज है। Of course, sometimes it's way too much to take. तो क्या होता है, हम बहुत we're just like in the movies and all, we are just starting. So when we go with lots of things in our head कि oh shit, हम संजय लीला सर के साथ काम करेंगे, उनसे सीखने मिलेगा हमें and all. And वो उनको ये ऑब्वियसली रियलाइज होता है, बट वो सबका तो वो चीज ध्यान में नहीं रख सकते ना, वो क्या सोच रहे होंगे, ये क्या सोच रहे थे। ही जस्ट रिएक्ट्स, ही जस्ट बिहेव्स। सो वी गेट रियली लाइक, एटलीस्ट आई वाज इंटिमिडेटेड बाय हिज बिहेवियर, बट देन आई रियलाइज्ड कि ईदर आप उस क्या बोलते हैं, जोन में रहो उनके साथ और सीखो, उनका गुस्सा समझो और आगे बढ़ो, या तो आप नहीं करो उनके साथ। इट्स लाइक ईदर और, या तो आप उनका गुस्सा ले सकते हो, समझ सकते हो एंड यू कैन लेट इट बी, और यू हैव टू लेट इट, और यू जस्ट गो, यू डोंट वर्क विद हिम। सो या, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट ओवरवेलमिंग फॉर मी। एंड इतने बड़े एक्टर्स, and there was Shahid Kapoor, there was Deepika, there was Ranveer, and sometimes I wonder how the ADs deal, because उनके टाइमिंग्स, उनके दूसरे स्केड्स, उनका मूड, उनका कैरेक्टर में है, तो
काफी सारी चीजें चलती है, you know, on a set. Correct. So yeah, and that was one set, I have to tell you something, जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसे पिन ड्रॉप रहता है, क्योंकि सब डरे हुए रहते थोड़े से कि सर कब भड़क जाए या कुछ कहते, बट उनका गुस्सा completely जायज है because he is in that position. Yeah, so these were my beautiful experiences with them. आपके तो एक्सपीरियंस सुनकर हमारे भी चेहरे पर हंसी आ रही है, मतलब वो फील कर सकती हूँ मैं एग्जैक्टली कि किस तरह से हो सकता है चीजें। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक नया एल्बम आ रहा है, नेटफ्लिक्स के साथ एक नया प्रोजेक्ट है। Sorry. No There you go. Yeah. अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो नेटफ्लिक्स के साथ एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, ये काली काली आके एक नया एल्बम आने वाला है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए? So this project that I'm doing, ये काली काली आंखें for Netflix. So you know OTT platform में ना ज्यादा डांस दिखाने का स्कोप नहीं होता है. I'll tell you why. Because जो रन टाइम होता है शोज का काफी कम होता है. As in you don't have too much time. आपके पास 45 minutes रहता है या 1 घंटा रहता है एक एपिसोड का, एक क्या कहते हैं you know शो का in your sequence, in your project. तो फिर आप उसमें डांस जब डालते हो तो वो काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इस वजह से कि कम शोज ओटीटी में होंगे जिसमें डांस आता है या डांस यूज करते हैं, वो काफी कम रखते हैं और छोड़ देते हैं. तो दिस शो ये काली काली आंखें हैज अ कैरेक्टर हु इज अ डांस टीचर. तो मुझे इस शो में 4 सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ करने थे, एंड बिकॉज शी इज अ डांस टीचर आई हैड मोर स्कोप ऑफ शोइंग डांस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन OTT platform. So I think this is going to be one of the first shows जिसमें डांस काफी है on OTT platform. OTT में काफी नहीं रहता है, तो हमने प्रॉपर डांस सीक्वेंसेस किए हैं, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हुए हैं, रिहर्सल दिखा रहे हैं, एक वेडिंग सॉन्ग है, तो काफी सारे गाने हैं इस शो में. So I'm actually very excited for this show because it's going to be really interesting and really amazing. And my favorite director Siddharth Sen Gupta has directed it, so I'm super excited about this show. The other 2 projects that I just did was one with Dr. Palash Sen. He is the head of Euphoria band के साथ the most nostalgic. तो I get into nostalgia when I think of them, क्योंकि मैं उनको सुनते हुए बड़ी हूँ, हम सब उनको धूम पे चकधूम सुनते हुए बड़े हुए हैं. So when I got this opportunity, I was like, my God, मुझे उनको कोरियोग्राफ करना है, उनके गाने को have to bring magic to their song. मतलब it has to be different. It cannot be normal, क्योंकि उनके गाने already इतने beautiful है. मायरी, कभी आना तू मेरी गली, धूम पे चकधूम, उनके गाने इतने ब्यूटीफुल है, वो इतने ब्यूटीफुली उनको डायरेक्ट करते हैं या उनको they bring it together. I have to bring something new to the picture. So मैं काफी एक्साइटेड थी. एट द सेम टाइम मुझे ऐसा था कि नहीं, इस तरीके से करना है कि उनको मेरा काम अच्छा लगे. एंड आई गॉट द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ माय लाइफ. ही लाइक्ड माय वर्क सो मच. उन्होंने कहा, अगर आपका कोई बड़ा फैन है या कोई भी फैन है, आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑफ योर वर्क. सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हिम. आई वाज लाइक ऑनर्ड टू गेट दैट, हियर दोस वर्ड्स फ्रॉम हिम. आई हैड टू ट्रैवल टू दिल्ली. And उनका गाना हम लोग, we were just having fun. The whole team, the whole gang, they are just having fun. And we were at the set. And sir का उसूल है कि वो कोई गाना करते हैं ना, उसमें वो जिन को जो भी टेक्नीशियंस है, जो भी लोग हैं, उन सबको एज अ कैरेक्टर लेते हैं if there is a scope. तो वो डायरेक्टर को भी एक कैरेक्टर में उस गाने में डाले हैं, मुझे भी उन्होंने एक कैरेक्टर की तरह उस गाने में डाला है, और मैंने कोरियोग्राफ भी किया है. So Dr. Palash does that. So that was the second project that I have just worked. It is really interesting, and it's going to be releasing soon. The song is going to be releasing on 23rd, I think, on Ganpati or something. The third project that I just did is I just shot yesterday. It's for this app that's getting launched. Ankit Tiwari has sung the song for the app. तो जब अंकित तिवारी जी के साथ मुझे कोरियोग्राफ करना था, मुझे लगा अंकित तिवारी
तो क्या ही डांस करेंगे, वो तो कहेंगे कि यार तुम क्या कर रही हो अंकिता, मुझसे क्या डांस करा रही हो, मैं नहीं करा। बट आई एम सॉरी, ही वाज सो स्वीट, ही सेड तुम जो सिखाओगी मैं सीखूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं चेंज कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। नहीं, क्यों चेंज करोगी? तो मैंने बोला क्योंकि सर मुझे नहीं पता, आप डांस कर लोगे, अब तो मैं करूंगा, अब तो मैं तुम जो जो सिखाओगी वो मैं करूंगा। आई सेड ठीक है। एंड ही रियली डिड। जो जो मैंने उन्हें सिखाया, जो जो मैंने उन्हें कहा सर ये करना है, सर वो करना है, ही डिड ऑल द स्टेप्स एंड ही वाज सो स्वीट, he was so warm, and he was, and उनकी आवाज ना इतनी सॉफ्ट है ना, वो बात भी करते हैं ना इतने, एक एक टोन है उनकी जो उसके ऊपर वो जाती ही नहीं है. So it was so nice to work with him. I was so happy, and I told him, sir, when if I ever talk about the few of my favorite people I've worked with, your name is also going to come, because he was really humble, sweet, and just warm. So yeah, these are the three projects that's going to be releasing soon. मतलब अपकमिंग डेज में भी बहुत कुछ देखने मिलने वाला है. मतलब बहुत पैकेज वगैरह है अच्छा खासा, मतलब बहुत सारी चीजें लाइनअप है. मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, शायद बहुत सारे लोग भी देखना पसंद करेंगे कि क्या कुछ आने वाला है. इसी तरह आपके नए नए प्रोजेक्ट्स हम सबके सामने आते रहे और हम सबको एंटरटेन करते रहे. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी. Thank you so much. It was lovely speaking to you. Thank you for having me on this show. And see you soon in the journey of life. Yeah.